بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ناول۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا کر تمام نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ شکریہ۔ اندھیرے میں ہم ڈونگے کے پیندے میں اوندھے منہ دم سادے لیٹے ہوئے تھے، اس خوف سے کہ کہیں ہماری کھوپڑیاں چٹانوں سے ٹکرا کر پھٹ نہ جائیں۔ ہم 1 گھنٹہ تک یوں ہی پڑے رہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سر اٹھا کر اپنے آس پاس یا اوپر دیکھے۔ پانی اتنے زور کے ساتھ بہہ رہا تھا کہ ہم اگر پوری قوت سے چلا کر بھی گفتگو کرتے تو سنائی نہ دیتا۔ دل پر موت کا خوف طاری تھا، دماغ معوف ہو چکے تھے اور زبانیں گنگ تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا موت ہمارے تعاقب میں آ رہی ہے اور جلد ہی ہمیں دبوچ لے گی۔ یا تو ہمارا ڈونگا چٹان سے ٹکرا کر پاچ ہو جائے گا اور ہم غرق ہو جائیں گے، یا کوئی بھنور ہمیں ڈونگے سمیت اپنی آغوش میں لے لے گا، یا پھر ہوا کی کمی کے سبب ہمارا دم گھٹ جائے گا۔ انجام بہرحال ایک ہی تھا، موت۔ ہر شخص کے دل و دماغ پر موت کا خوف مسلط تھا اور ہم دل ہی دل میں اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے آخری دعا پڑھ رہے تھے۔ ڈونگے کے پیندے میں دم سادے پڑے ہوئے مجھے یا شاید سب کو موت نئے نئے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ غرقابی، بھوک، گھٹن، ہر منٹ کے بعد موت نیا روپ دھار کر میرے سامنے آتی۔ وہ بھیانک کہے لگاتی اور میں کانپ اٹھتا۔ او خدا، کتنا بھیانک عبرتناک انجام! شوں شاں شاں شوں پانی تیزی سے بہہ رہا تھا اور ساتھ ہی ہمارے ڈونگے کو بھی بہائے لیے جا رہا تھا۔ پانی کے بہاؤ کی آواز کے علاوہ ایک اور آواز تھی، اور یہ میرے قریب لیٹے ہوئے الفونسے کی خوف میں ڈوبی ہوئی آواز تھی۔ وہ بچوں کی طرح چیخ کر رو رہا تھا، لیکن یہ آواز بھی غیر محسوسی معلوم ہو رہی تھی۔ اب میرا دماغ بھی بالکل معوف ہو چکا تھا اور میرے اوسان جو اب تک بجا تھے خطا ہو رہے تھے۔ ہمارا ڈونگا تیزی سے کسی طرف جا رہا تھا، شاید موت کی بھیانک وادی کی طرف۔ تیز رفتار دھارا ہمیں اپنی آغوش میں بہائے لیے جا رہا تھا، یہاں تک کہ پانی کے بہنے کا شور کم ہو گیا، اور اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جگہ بنسبت پہلی سرنگ کے کچھ زیادہ ہی وسیع ہوگی، جس کے سبب پانی کو زیادہ آسانی سے بہنے کی جگہ ملی، اور اسی لیے اس کی آوازیں بازگشت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اب میں الفونسے کی کراہیں اور دعائیں بخوبی سن سکتا تھا، جو خدا کی تعریف سے شروع ہو کر اس کے دادا جان کی تعریف تک پہنچتی اور پھر اس کی معشوقہ عناتے کی تعریف پر جا کر ختم ہو جاتی۔ اس کی دعائیں سننے سے ہی تعلق رکھتی تھیں۔ میں کچھ دیر تک اس کی انوکھی دعاؤں سے لطف اندوز ہوتا رہا، اور پھر پڑے ہی پڑے چپو اٹھا کر الفونسے کی پسلیوں میں چبھو دیا۔ یہ سمجھ کر کہ مرنے کا وقت آ پہنچا، وہ اس بری طرح سے چلایا کہ میں بھی اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ بہت آہستگی سے سنبھل کر میں اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، لیکن چھت کو نہ چھو سکا۔ پھر میں نے چپو اٹھایا اور بیٹھے بیٹھے سے اپنے سر سے اوپر بلند کیا، لیکن وہ بھی چھت کو چھو نہ سکا۔ میں نے اپنے دائیں بائیں چپو کو ہلایا، اس طرف بھی وہ سوائے پانی کے اور کسی چیز سے نہ لگا۔ اب میرے حواس رفتہ رفتہ بجا ہو رہے تھے اور میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا خوف کم ہو رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے سامان میں ایک لالٹین بھی موجود ہے اور تیل کا ایک چھوٹا سا ٹین بھی۔ سامان کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر کافی دیر تک ٹٹولتا رہا، تب کہیں جا کر لالٹین ہاتھ میں آئی۔ میں نے دیا سلائی جیب سے نکال کر ایک تیلی جلائی۔ لالٹین کے فیتے نے شعلہ پکڑا تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ میں لالٹین لیے اپنے ساتھیوں کی طرف گھوم گیا۔ لالٹین کی ٹمٹماتی روشنی کو دیکھ کر الفونسے سمجھا کہ وہ مر چکا ہے اور منکر نکیر اس سے سوال کرنے آئے ہیں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ منہ پھاڑ کر اس بری طرح سے چیخا کہ اس کی آواز کافی دیر تک سرنگ میں گونجتی رہی۔ چپو کے ٹھوکے دے کر میں نے اسے بڑی مشکلوں سے خاموش کیا۔ اب رہے میرے دوسرے 3 ساتھی، تو ان میں سے گڈ چت لیٹا اوپر کی طرف تاریک خلا میں گر رہا تھا۔ یک چشمی عینک بدستور اپنی جگہ پر بڑی مستعدی سے لگی ہوئی تھی۔ ہنری کا سر ڈونگے کے کنارے پر ٹکا ہوا تھا اور وہ ہاتھ پانی میں ڈالے اس کی رفتار معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب میں نے لالٹین کو ایسلوپوگاس کی طرف گھمایا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں بے اختیار ہنس پڑتا۔ چلتے وقت ہم نے ہرن کی بھنی ہوئی مسلم ران اپنے ساتھ لے لی تھی۔ اب ہوا یوں کہ جب ہم غار میں داخل ہوتے وقت افراتفری میں ڈونگے میں اوندھے منہ گرے تو اتفاقاً ایسلوپوگاس کا منہ بھنی ہوئی ران پر جا پڑا، اور جب ہم سرنگ میں داخل ہو گئے تو ایسلوپوگاس کو احساس ہوا کہ وہ بے حد بھوکا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے انکوسی کاس سے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا کاٹا اور اب وہ اسے بڑی رغبت اور اطمینان سے کھا رہا تھا۔ اس نے اپنی حرکت کو ان الفاظ میں سمجھایا: چونکہ مجھے یقین تھا کہ اب میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہو رہا ہوں اور دوسری دنیا میں بھوکے پیٹ جانا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں وہاں کچھ کھانے کو ملے یا نہیں، چنانچہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی دنیا میں شکم سیر ہو کر کھا لیا جائے کہ کسی قسم کی کوئی فکر باقی نہ رہے۔
मुझे यकलख्त उस मुजरिम की याद आ गई जिसे फांसी दी जाती है। उसकी मौत के बाद अखबारात में ये खबर जिली हरूफ में शाया हो जाती है कि फांसी दिए जाने से पहले मुजरिम को निहायत लजीज खाना खिलाया गया और आला दर्जे की शराब पिलाई गई। जब मेरे दोस्तों ने देखा कि मैं लालटेन जलाने में कामयाब हो गया हूं तो वो उठ बैठे। अलबत्ता अल्फोंसे था कि अब तक बराबर चिल्ला रहा था। हम सब ने उसे डोंगे के आखिरी सिरे पर धकेल दिया और हेनरी ने दांत पीसते हुए आगाह किया कि अगर उसने चिल्ला कर इस भयानक तारीकी को और भी भयानक बनाने की कोशिश की तो हम सब मिलकर उसे डोंगे से बाहर फेंक देंगे और फिर उसका अंजाम भी हमारे वो काफ़ी मुलाजिम जैसा होगा और वह दूसरी दुनिया में इत्मीनान से बैठा अपनी अनाते का इंतजार करता रहेगा। इस धमकी का खातिर ख्वाह असर हुआ। अल्फोंसे एकदम से खामोश हो गया, लेकिन उसका तमाम बदन खजार सीधा पत्ते की तरह कांप रहा था। अब हमने अपनी हालत पर गौर करना शुरू किया। सबसे पहले गुड के मशवरे पर अमल करते हुए डोंगे के इब्तदाई सिरे पर 2 चप्पू खड़े करके बांध दिए गए ताकि अगर कहीं सुरंग की छत नीची हो जाए तो हमें पता चल जाए और हम अपने आप को बचा सकें। हम ज़ेरे ज़मीन नदी में सफ़र कर रहे थे। या बकौल अल्फोंसे ये वो बड़ा नाला था जिसके ज़रिए तालाब का ज़ायद पानी बह जाता है। ऐसी ज़ेरे ज़मीन नदियाँ करीब करीब दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें सफ़र करना हमारी ही किस्मत में लिखा था। लोगों ने जान पर खेलकर दुनिया के भयानक गोशों की खोज लगाई है, लेकिन यूं ज़ेरे ज़मीन आज तक ना तो किसी ने कोई सफ़र किया और ना ही आइंदा कोई कर सकेगा। नदी का पार्ट काफ़ी चौड़ा था, इसलिए लालटेन की रोशनी बैक वक्त दोनों किनारों तक नहीं पहुंच सकती थी। हाँ, कभी कभार यूं हो जाता कि तेज़ धार हमारे डोंगे को दाएं या बाएं तरफ खींच ले जाता और तब हमें डोंगे की स्याह चट्टानी दीवार, जो हमारे अंदाजे के मुताबिक हमारे सरों से कोई 20-25 फुट ऊपर मेहराब बना रही थी, नज़र आ जाती। बकौल गुड डोंगे के इब्तदाई सिरे पर चप्पू बांध चुकने के बाद सबसे पहला काम हमें यह करना था कि हम में से कोई एक बांस लेकर जो डोंगे में मौजूद था बंधे हुए चप्पुओं के बीच में बैठ जाते और उसके ज़रिए पानी की सतह से निकली हुई चट्टानों और अगर सुरंग की दीवारें कम हो जाएं तो उनका ख्याल रखे और अगर ऐसा हो तो हमें आगाह करे ताकि हम डोंगे को चट्टानों या दीवारों से टकराने से बचाने की कोशिश करें। एस्लोपोगस चूंकि खाने से फारिग हो चुका था, इसलिए पहली बारी उसी की थी। उसने बांस उठाया और डोंगे के इब्तदाई सिरे पर बंधे हुए चप्पुओं के बीच में जा बैठा। यही एक एहतियाती तदबीर थी जो हम अपने बचाव के लिए इख्तियार कर सकते थे, लेकिन फिर फ़ौरन मेरे जहन में दूसरी तदबीर आई और वो ये कि एक और शख्स चप्पू लेकर डोंगे के आखिरी सिरे पर जा बैठे और मुमकिन हो तो डोंगे को सुरंग की दीवारों से दूर दूर रखने की कोशिश करे और चप्पू के ज़रिए, और वो भी ऐसे तेज़ धारे में। ये काम ज़्यादा मुश्किल था। इस मुश्किल काम से गुड मामूर हुआ और अब हमारे दिल को इत्मीनान हुआ। झूठा ही सही, हमने अपने बचाव की तदबीर कर ली थी। इन चीज़ों से फुर्सत पाने के बाद हमने थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा, जिससे भूख की बेचैनी ख़त्म हो, हिरन का ठंडा गोश्त जहर मार किया। गोश्त की मिकदार बहुत कम थी और हम नहीं जानते थे कि हमें कब तक यूं ही चलना होगा, इसलिए बराए नाम खाना खाने पर इक्तफा की। पेट के दोज़ख को ईंधन मिला। कलील मिकदार में से ही दिमाग अपना काम करने लगा और हम अपनी हालत पर रायज़नी करने लगे। मैंने कहा कि अगर गांव वालों का कहना सच है और हकीकत में यह नदी पाताल का रुख कर रही है, तब तो हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अगर मामला इसके बरक्स है तो जाहिर है कि नदी किसी न किसी जगह सुरंग से बाहर निकल आएगी, शायद पहाड़ के दूसरी तरफ। उस सूरत में हमें यह करना है कि उस वक्त तक अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करें जब तक कि सुरंग के बाहर निकल नहीं आते। गुड ने कहा, बाफर्ज मुहाल अगर हम इस सुरंग से निकलने में कामयाब हो गए तो पता नहीं कहाँ निकलेंगे। ये भी तो हो सकता है दूसरी तरफ कुछ और अनजाने खतरात हमें निर्गे में लेने के लिए तैयार हों और एक मुसीबत से निकलकर हम दूसरी मुसीबत में, जो इससे भी ज़बरदस्त हो, फंस जाएं। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं ये कोई नहीं जानता। शायद हम मौत के सामने से भागकर मौत ही की तरफ जा रहे हों। यह भी तो हो सकता है कि नदी हकीकत में पाताल की तरफ ही उतर रही हो। अगर ऐसा ही है तो नदी किसी जगह जाकर ज़रूर खुश्क हो जाएगी और इस सूरत में हम जिंदा दफन हो जाएंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता, हेनरी ने कहा। बहरहाल हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। हेनरी वो शख्स है जो कड़ी से कड़ी आजमाइश में मुस्कुराना जानता है। सही मायनों में वह हिम्मत और ताकत का देवता है। हेनरी का मशवरा बड़ा बाअसर साबित हुआ और हर शख्स ने उसे अपने अपने तौर पर कबूल कर लिया, और हम कर भी क्या सकते थे। हम तीनों, हेनरी ने फिर कहा, ऐसे ऐसे खतरात से बच निकले हैं कि मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि किसी न किसी तरह हम इस सुरंग से भी निकल आएंगे। गंजे सुलेमान की मुहिम याद है ना? एक बार फिर कहता हूँ कि बेहतर वक्त की उम्मीद रखो और बुरे वक्त के लिए तैयार रहो। हमें एक गोना इत्मीनान हुआ, लेकिन अल्फोंसे की समझ में ये बात किसी तरह न आई। वह बदस्तूर सहमा हुआ था। गुड चप्पू लिए डोंगे के आखिरी
और एस्लोपोगास इब्तदाई सिरे पर बांस लिए बैठा था। चुनाचे मेरे और हेनरी के लिए कोई काम नहीं रह गया था, इसलिए हम कमर सीधी करने के लिए डोंगे में लेटकर ख्यालात में उलझ गए। नहायत अजीब और हैरत अंगेज सूरत हाल थी कि हम ज़मीन के बतन में तेज़ी से किसी तरफ चले जा रहे थे। किस तरफ ये कोई नहीं जानता था, शायद किसी अनजानी दुनिया की तरफ, या शायद किसी सरसब्ज़ो शादाब खित्ते की तरफ। पता नहीं हम किस तरफ जा रहे थे, पता नहीं हमारा क्या अंजाम होगा। उम्मीद तो यही थी कि हम ऐसे गायब होंगे कि कोई नहीं जानेगा कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ गए। चंद सालों बाद ही दुनिया हमें भुला देगी और हमारी हड्डियाँ पता नहीं कहाँ पड़ी सूख रही होंगी। सामने हाथ में बांस लिए एस्लोपोगास बेफिक्र बैठा था, जैसे उसे यकीन हो कि उसके लिए मौत नहीं है, वो लाफानी है। डोंगे के पिछले हिस्से पर कप्तान जॉन गुड बैठा सोच रहा था कि वो चप्पू कैसे चलाए। उसका चप्पू बार बार पानी में छपाछप की आवाज़ पैदा करता और फिर वापस खींच लिया जाता। गुड भी मुतमईन था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने सोचा। बेटा क्वार्टरमैन, तुम कारनामों की तलाश में चले थे ना? मुहिम जुई तो तुम्हारी गुट्ठी में पड़ी है। जब ओखली में सर दिया है तो धमाकों से क्यों डरते हो? और निकलो तहकीक करने और जाओ नई नई मुहिमात सर करने। शायद तुम इस मौत के गार से जिंदा निकल आओ। बड़े ढीठ हो तुम। अगर ना निकले तो ये ज़ेरे ज़मीन नदी बड़ी अच्छी कब्र साबित होगी। तुम्हारी सख्त जानी से उम्मीद तो नहीं कि तुम इतने जल्द मर जाओगे। मुझे एतराफ़ है कि इब्तदा में मारे खौफ के मेरी हालत एसाबी मरीज़ों की सी हो रही थी। आप ही ख्याल कीजिए कितना आजमाइशी वक्त था वो, कितनी क़यामत खेज़ घड़ी थी। हकीकत में बड़े बड़े सुरमाओं के पित्ते पानी हो जाते। आप ज़रा उस वक्त को अपने तसव्वुर में लाने की कोशिश कीजिए। एक नहायत तारीक सुरंग, उसमें हम बहे जा रहे थे और नहीं जानते कि आने वाला घंटा या लम्हा हमारे लिए कौन से नए मसाइल लेकर आ रहा है। घोर अंधेरा, और उस अंधेरे में हम 5 अशखास किस तरफ जा रहे थे? बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि कोई कुव्वत हमें जबरन लिए जा रही थी, और हर 5 मिनट के बाद यकीन होता जा रहा था कि हम में और मौत में कुछ ज़्यादा फासला बाकी नहीं। इस हालत में अगर कोई पागल हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो फ़ानी ना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका इंसान आदी ना हो जाए। दफतन रफ्ता रफ्ता मेरा खौफ भी गायब होने लगा और मैं सूरत हाल का आदी हो गया। और सच पूछिए तो मेरा खौफ और अंदेशे लामायनी ही थे, जबकि हम में से कोई नहीं जानता था कि आइंदा 5 मिनटों में क्या होने वाला है। हम नहायत मजबूत ज़ेरे ज़मीन किला में थे और 2 पहरेदार गुड और एस्लोपोगास भी मुस्ताद बैठे पहरा दे रहे थे। लेकिन यहाँ भी अगर मौत को आना है तो ज़रूर आएगी। उससे ना तो एस्लोपोगास रोक सकता है, ना गुड, और ना ही ये मजबूत सुरंग। जो कुछ होना है ज़रूर होकर रहेगा। किस्मत के लिखे को मिटाना किसी के इख्तियार में नहीं, ना ही फ़ानी इंसान को गैब की बातों का इल्म है। फिर मुस्तकबिल के बारे में उल्टे सीधे अंदेशे कायम करके अपने आप को दहलाने से फ़ायदा। दोपहर हो चुकी थी जब हम मौत के गार में दाखिल हुए थे और एस्लोपोगास और गुड करीबन 2 बजे अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठे थे और उनकी ड्यूटी 5 घंटे की थी। चुनाचे शाम के 7 बजे मैंने और हेनरी ने गुड और एस्लोपोगास की जगह संभाली और वो दोनों डोंगे में लेट गए। मैं चपूलिए डोंगे के पिछले हिस्से में था और हेनरी ने एस्लोपोगास की जगह संभाली। सिवाय इसके कोई ख़ास वाक़या न हुआ। बस एक बार हेनरी ने मुझे झुक जाने को कहा और मुझे चप्पू चलाकर डोंगे को बीच में लाना पड़ा। इस सुरंग के बारे में एक बात हैरान कुन थी, यानी ये कि यहाँ की हवा ताज़ा कैसे रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि फ़िज़ा में घुटन भी थी और सुरंग की हवा भी वज़नी मालूम होती थी, लेकिन ना इस कदर के सांस लेने में दुश्वारी हो या दम घुटने लगे। हवा के ताज़ा रहने की सिर्फ एक ही वजह समझ में आई, और वो ये कि तालाब का जो पानी सुरंग में दाखिल होता था वो अपने साथ ताज़ा हवा की काफ़ी मिकदार लेकर आता था और अंदर की ख़राब हवा को अपने साथ लिए आगे बढ़ जाता था। बस यही एक वजह थी हवा के ताज़ा रहने की। हमें अपनी ड्यूटी पर बैठे शायद 3 घंटे गुजरे होंगे कि मुझे सुरंग की फ़िज़ा में नुमायाँ तब्दीली महसूस हुई। हवा गर्म होती जा रही थी। इब्तदा में मैंने इसे अपना वहमा समझकर इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी, लेकिन निस्फ घंटे बाद ही फ़िज़ा गर्म तर हो गई तो मैंने हेनरी से पूछा, क्या वो भी इस तब्दीली को महसूस कर रहा है कि नहीं? महसूस क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। हकीकत में मुझे तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि तुर्की गुसल खाने में बैठा भाप का गुसल कर रहा हूँ। दूसरे साथी जो लेटे नींद के मज़े ले रहे थे दफतन हाँपते हुए उठ बैठे और उन्होंने उठते ही पहला काम यह किया कि अपने कपड़े उतार कर नंगे हो गए। एस्लोपोगास के जिस्म पर सिवाय लंगोटी के कोई कपड़ा था ही नहीं जिसका जिक्र किया जा सके। जैसे जैसे हमारा डोंगा आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे फ़िज़ा गर्म होती जा रही थी, यहाँ तक कि सांस लेना दोभर हो रहा था। निस्फ घंटा और गुजर गया और अब हम में से किसी एक के जिस्म पर भी कोई कपड़ा ना था। हम सब नंगे हो गए थे, मादरजाद नंगे। गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। गरम और गरम,
और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं ये जगह दोज़ख का 7वां तबक तो नहीं। मैंने बिला सोचे समझे अपना हाथ बहते हुए पानी में डाल दिया, लेकिन फिर फौरन ही एक चीख के साथ वापस खींच लिया। पानी करीब करीब उबल रहा था। हमारे सामान में एक छोटा सा थर्मामीटर मौजूद था। जल्दी से सारी चीज़ें टटोल कर उसे निकाला और लालटेन की रोशनी में देखा। उसका सीमाब 21 दर्जा हरारत पर जा पहुंचा था। ओ खुदा, ये क्या नई मुसीबत नाजिल हुई। पानी की सतह पर भारी भारी भाप के बादल मंडला रहे थे। अल्फोंसे ने जो अब तक खामोश बैठा हुआ था, अपनी फितरत से मजबूर होकर चिल्ला उठा, मोंसियोर, ओ खुदा की कसम, मुकाम में एराफ से गुजरे हैं। हाय हाय, मर गए। ओ खुदा, मेरी अनाती, मेरी प्यारी। हकीकत में मालूम तो यही होता था कि हम एराफ में मौजूद हैं, जहाँ रूहों को गुनाह सगीरा से पाक होने के लिए भेजा जाता है। मालूम होता है, हेनरी ने कहा, कि हम किसी ज़ेरे ज़मीन सुलगते हुए आतिशफिशां के ऊपर से गुजर रहे हैं, और सुरंग में फैलती हुई रोशनी के सबब हेनरी का ख्याल एक हद तक ठीक ही मालूम होता है। हमारे जिस्मों में जितना पसीना था तमाम का तमाम बह चुका था, और अब हमारे जिस्म ईंधन जैसे खुश्क थे। इस हालत में हेनरी और मैं अपनी जगह पर बैठ नहीं सकते थे। चुनाचे हमने डोंगे को अल्लाह तवक्कल छोड़ दिया और अपने साथियों के साथ उसके पैंदे में लेट गए। नंगे, बिल्कुल नंगे, लेकिन पैंदा भी इतना गर्म हो चुका था कि मालूम होता था हम अंगारों पर लेटे हुए हैं। और उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मछली की हालत पानी से बाहर निकलकर ऐसी ही हो जाती होगी जैसे कि हमारी हो रही थी, यानी हमारा दम घुट रहा था और हम तड़प रहे थे। गर्मी की शिद्दत के बायस हमारी जल्द तिड़क गई और कनपटियों के करीब खून गर्म होकर सनसनाने लगा। कुछ देर तक यही हालत रही। यकलख्त नदी एक तरफ को मुड़ गई और साथ ही हेनरी के मुंह से, जो डोंगे के इब्तदाई सिरे पर पड़ा हुआ था, खौफ व हैरत की चीख निकल गई। मैंने गर्दन उठाई तो एक अनोखा मगर खून खुश्क कर देने वाला नज़ारा देखा। हमसे कोई निस्फ मील दूर और नदी के बीच से ज़रा बाएं तरफ हटकर नदी का पट हमें बखूबी नज़र आ रहा था। वो 10 फुट चौड़ा था। सफ़ेद शोले का एक फवारा पानी की सतह से उबल रहा था। आग का फवारा 15 फुट की बुलंदी पर सुरंग की छत से टकराता और फटकर 40 फुट के मुहीत में पूरे खिले हुए फूल की शक्ल में बिखर जाता। गैस का वो फवारा सही मायनों में एक ज़बरदस्त गुले आतिशी था। वो स्याह पानी की सतह से उग आया था। नीचे फूल का डंठल था, 1 फुट से कुछ ज़्यादा मोटा, और उस डंठल के ऊपर 15 फुट की बुलंदी पर आतिशी फूल खिल रहा था। उस फूल के आतिशी हुस्न और उसकी दहशत अंगेजी को मैं बयान नहीं कर सकता। हालांकि हम उस गुले आतिश से 1500 गज दूर थे और चारों तरफ काली काली घास मंडला रही थी, लेकिन उस गुल की गजबनाकी और तेज़ी ये थी कि सुरंग में मालूम होता था दिन निकल आया हो और सूरज का गोला बिल्कुल हमारे सरों पर उतर आया हो। आतिशे गुल ने सुरंग के मजबूती चट्टानी छत में 40-40 गज तक दरारें डाल दी थीं और दीवारों के परत उतर गए थे और उसमें सफ़ेद सफ़ेद रगें सी नज़र आ रही थी। उस वक्त हम इतने परेशान थे कि मालूम न कर सके कि वो रगें कौन सी धात की हैं। हमारा डोंगा बड़ी तेज़ी से उस आतिशी गुल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अगर किसी शहर के तमाम बाशिंदे मिलकर भी कोई भट्टी रोशन करें, बड़ी सी भट्टी जिसमें पूरे एक जंगल के तमाम दरख्त काट काट कर डाल दिए जाएं, तब भी वो गुले आतिशी की तुंदही और तेज़ी का मुकाबला नहीं कर सकती। क्वार्टरमैन, खुदा के लिए डोंगे को दाएं तरफ रखने की कोशिश करो। दाएं तरफ मेरे भाई, दाएं तरफ। हेनरी चिल्लाया और फौरन ही बेहोश होकर औंधे मुंह गिरा। अल्फोंसे कभी का बेहोश पड़ा हुआ था। हेनरी के बाद गुड भी बेहोश हो गया। सिर्फ एस्लोपोगास और मैं डोंगा संभालने की जान तोड़ कोशिश कर रहे थे। अब हमारे और गुले आतिश के बीच में सिर्फ 50 गज का फासला रह गया था। एस्लोपोगास का सर एक तरफ ढलक गया। उसके लंबे लंबे बाल बेजान होकर लटक गए। वो कमर से झुका और एक ज़ोरदार धमाके के साथ डोंगे में गिरा। वो भी बेहोश हो चुका था और तन्हा मैं अपनी तमाम तर कुव्वत सर्फ करके डोंगे को दाएं तरफ रखने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांस रुकी जा रही थी। रगों में बजाय खून के जैसे गरम गरम लावा गर्दिश कर रहा था। दिमाग की रगें फटी जा रही थी और यूँ मालूम होता था कि या तो पल भर में दिमाग पिघलकर नाक की राह से बह जाएगा या खोपड़ी तड़ाक से फट जाएगी। चौबी डोंगा इतना तप गया था कि जलने के करीब था। सुरंग की छत दूर तक तप कर तांबे जैसी सुर्ख हो रही थी और हमारे शिकार किए हुए हंस के पर गर्मी से ईंटकर चुरमुर हुए जा रहे थे। लेकिन मैंने अपने होश बजा रखे। मैं हिम्मत ना हारा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं भी बेहोश हो गया तो हमारा डोंगा आतिशी गुल के बीच में से या उसके करीब से गुजरेगा और हम सब जल भुनकर कोयला हो जाएंगे। इंसान के इख्तियार में क्या नहीं, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है।
मैंने होश में रहने की कोशिश की और कामयाब हुआ। मैंने चप्पू उबलते हुए पानी में डाला और इस बात की कोशिश करने लगा कि जितना भी मुमकिन हो डोंगे को आतिशी गुल से दूर रखूं। मेरी आंखें हल्कों से निकलने के करीब थीं, वो बुरी तरह से जल रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तेज़ रोशनी पपोटों को चीर कर दीदों तक पहुंच रही थी। अब हमारा डोंगा उस आतिशी गुल के बिल्कुल मुकाबिल था। आतिशी गुल दोज़ख की आग की तरह दहक रहा था और दहाड़ रहा था, और नदी का पानी अंगीठी में रखी हुई केतली के पानी की तरह उबल रहा था। 5 सेकंड, क़यामत के 5 सेकंड, और हमारा डोंगा उस दोज़खी शोले से गुजर गया। शोले की गरज मुझे अपने पीछे सुनाई दे रही थी और फिर मैं भी बेहोश हो गया। पता नहीं मैं कब तक बेहोश पड़ा रहा। मुझे अपने चेहरे पर ताज़ा हवा के झोंके महसूस हुए। बमुश्किल मैंने अपनी आंखें खोलीं। ऊपर, बहुत ऊपर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। डोंगा बदस्तूर बह रहा था और उसमें मेरे नंग धड़ंग साथी बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। क्या मेरे सब साथी मर गए, मैंने सोचा, और तन्हा मैं ही बच गया? इस सवाल का मुझे कोई जवाब न मिला। दफतन मुझे शदीद प्यास का एहसास हुआ। मैंने अपना हाथ पानी में डाला और फिर एक चीख के साथ वापस खींच लिया। हाथ की पुश्त की खाल जलकर उतर चुकी थी और जब मैंने पानी में हाथ डाला तो बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी तकलीफ हुई। बहरहाल पानी ठंडा था। मैंने पानी पिया और फिर अपने जिस्म पर पानी के छींटे दिए। पकी हुई खुश्क ईंट की तरह मेरा जिस्म सूख रहा था। पानी के छींटों से मुझे कुछ न कुछ फरहत महसूस हुई, लेकिन जहाँ जहाँ मेरी जल्द जल या झुलस गई थी वहाँ पानी बड़ा तकलीफदेह साबित हो रहा था। मेरी दहशत कम हुई तो मुझे अपने साथियों का ख्याल आया। मैंने बारी बारी से उन पर भी पानी छिड़का और ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वो रफ्ता रफ्ता होश में आ रहे थे। सबसे पहले एस्लोपोगास को, सबसे आखिर में अल्फोंसे को होश आया। मेरे साथी होश में आते ही पानी पर पिल पड़े और स्पंज की तरह बेतकान पीते रहे। चूँकि हम नाकाबिले बयान गर्मी में से आ रहे थे, उस वक्त कुछ सर्दी सी महसूस हो रही थी। चुनाचे हमने दोबारा कपड़े पहन लिए। अगर ये डोंगा, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि अलग अलग तख्ते जोड़कर बनाया गया होता, गुड ने कहा, तो भी इसके जोड़ खुल गए होते और हमें गर्क करने के लिए डोंगे में काफ़ी पानी घुस आता। लेकिन ये डोंगा, जैसे कि मैं पहले लिख चुका हूँ, किसी दरख्त के तने को खोखला करके बनाया गया था और काफ़ी मजबूत होने के बावजूद बेहद हल्का फुल्का था। वो आतिशी गुल क्या बला थी, ये हम आज तक न जान सके। मेरा अपना ख्याल ये है कि नदी के तह में कोई दर्ज या सुराख हो गया होगा। उस सुराख से ज़मीन के बर्तन में जलते हुए आतिशफिशां की गैस बाहर को निकल आई होगी और पानी को अपने साथ लेते हुए ऊपर को उठी होगी। सुनते आए थे कि कहीं पानी में भी आग लग सकती है, लेकिन हमारी आंखों ने न सिर्फ पानी में आग बल्कि पानी को आग में तब्दील होते भी देख लिया। जब हम कपड़े बदल चुके और हमारे हवास बजा हुए तो अब ये फिक्र हुई कि इस वक्त हम कहाँ हैं। जब मुझे होश आया था तो बहुत ऊपर हल्की हल्की रोशनी नजर आई थी। अब जो गौर से देखा तो पता चला कि रोशनी आसमान पर हो रही थी। नदी के दोनों किनारों पर 2000 फुट बुलंद चट्टानें खड़ी थीं, नहायत मजबूत और पायदार चट्टानें। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, बेहद बुलंद थी, इतनी बुलंद कि हमें आसमान तो नज़र नहीं आ रहा था मगर रोशनी हम तक पहुँच रही थी। लेकिन उस सुरंग में ऐसी तारीकी भी न थी जिससे निकलकर हम आ रहे थे। मौसम गर्मा में ठीक दोपहर के वक्त अगर किसी कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएं, तब भी आपने देखा होगा कि कमरे में धुंधली धुंधली रोशनी फैली रहती है। बस ऐसी ही रोशनी उन चट्टानों के बीच में थी। नदी के दाएं बाएं जो बुलंद चट्टानें खड़ी हुई थीं, उनके बीच का खला ऊपर जाकर शायद कम हो जाता था, लेकिन आसमान हमें एक नीली धज्जी की मानंद नजर आ रहा था। चट्टानों की चोटियां बिल्कुल नंगी थीं, कोई दरख्त कोई पौधा नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता चट्टानी दीवार पर किसी मुर्दे की ठोड़ी पर लहराती हुई दाढ़ी जैसी लंबी लंबी काई लटक रही थी। नदी के दाएं बाएं चट्टानों ने सदियों तक टूट टूट कर एक छोटा सा साहिल बना दिया था। साहिल क्या था, बस यूं मालूम होता था कि किसी जिन ने ज़माने कदीम के तोप के गोल पथरीले गोले बिखेर दिए हैं। मौसम बारह में जब नदी का पानी चढ़ जाता होगा तो ये साहिल भी ज़ेरे आब हो जाता होगा, और इसी साहिल पर हमने उतरने का इरादा किया ताकि अपनी सख्त मुश्किलात से गुजरने के बाद अपने आप को और अपने हिसाब को कुछ देर आराम दे सकें, अपना साजो सामान भी दुरुस्त कर लें और डोंगे की भी मुरम्मत कर ली जाए। दाएं तरफ का साहिल मुनासिब मालूम हुआ, चुनाचे काफ़ी दिक्कतों के बाद हमने डोंगा साहिल से लगाया। ओ खुदा, गुड ने हम सबसे पहले खुश्की पर कदम रखते हुए कहा, क्या दहशतनाक जगह है। ओ, इसके ख्याल से ही किसी के दिल को दौरे पड़ने लगे और वो हंसा। फ़ौरन ही एक गरजदार आवाज़ ने गुड के अल्फाज उठा लिए और उसे 1000 गुना बढ़ाकर वापस हमारे मुंह पर दे मारा। दौरे पड़ने लगे, हो हा हा, आवाज़ गरजी, दौरे।
दूसरी आवाज़ ने चोटियों पर से जवाब दिया, दौरे दौरे दौरे। कई आवाज़ें गूंजी और नजर न आने वाले लातादाद होंठों से भयानक कहकहों का एक तूफान उबल पड़ा। यहाँ तक कि तमाम जगह इन आवाज़ों से भर गई। ये आवाज़ें इतनी ज़ोरदार थीं कि हमने अपने कानों में उंगलियां ठोंस लीं। आवाज़ों का तूफान बहुत देर तक चट्टानों पर सतह आब पर लुढ़कता रहा, यहाँ तक कि ये आवाज़ें जिस तरह एकदम से पैदा हो गई थी उसी तरह से गायब हो गई। ओह, एस्लोपोगास ने कहा, यकीनन ये जगह शैतानों का मस्कन है, और ये जगह है भी ऐसी ही कि यहाँ सिवाय शैतानों और भूतों के कोई नहीं रह सकता। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये तमाम गड़बड़ सिर्फ आवाज़ की बाज़गश्त की वजह से है और कुछ नहीं, लेकिन ये बात किसी तरह उसके जहन नशीन ना हुई। मैकोमेजन, उसने कहा, मैं बाज़गश्त को पहचानता हूँ। हमारे गांव के बाहर भी एक बाज़गश्त रहती है जिसे हमारे गांव की औरतें और बच्चे बातें करने की आदी हैं। अब अगर यहाँ की बाज़गश्त जवान है तो हमारे गांव की बाज़गश्त शीरख्वार बच्चा होगी। नहीं नहीं मैकोमेजन, ये बाज़गश्त वाज़गश्त नहीं, इन चट्टानों की चोटियों पर शैतान बसती हैं, लेकिन अगर उनका ये ख्याल है कि वो मुझे खौफजदा कर देंगे तो वो गलती पर हैं। उसने चुटकी भर नस्वार अपने नथनों में चढ़ाई। बात यह है कि ये शैतान और भूत वगैरह इंसान के अल्फाज की नकल उतार सकती हैं, लेकिन बजाते खुद वो कुछ नहीं कह सकते। उनकी खोपड़ियाँ खाली होती हैं ना, इसलिए, और ना ही उनमें इतनी हिम्मत है कि कोई रूप धार कर इंसानों के सामने आए। जब हमारे हर लफ्ज़ को गेंद बनाकर चट्टानें उससे टेनिस खेलने लगें तो ज़रा आप ही ख्याल कीजिए हमें गुफ्तगू करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। हमारे मुंह से निकली हुई आवाज़ भी 1000 गुना बढ़ जाती थी और फिर काफ़ी देर तक गूंजती रहती थी। ये चीज़ वाकई नाकाबिले बर्दाश्त थी। अगर यूं ही मिनट मिनट में आवाज़ों का तूफान उठता रहा तो या तो हम पागल हो जाएंगे या फिर बहरे। चुनाचे हम सरगोशों में गुफ्तगू करने लगे, लेकिन हमारी ये कानाफूसी भी नहायत पुरस्रार बुड़बुड़ाहट में तब्दील होकर चट्टान पर दौड़ती और फिर एक आह के साथ ख़त्म हो जाती। बाज़गश्त नहायत दिलचस्प चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ बहुत मीठी हो तो कड़वी मालूम होती है। और उस दहशतनाक खाड़ी में यही दिलचस्प और मज़ेदार बाज़गश्त हमारे लिए वबाले जान बनी हुई थी। काफ़ी दिक्कतों के बाद हम गोल गोल पत्थरों पर बैठने के आदी हुए और अब हमने अपने ज़ख्मों को धोना और उनकी मरहम पट्टी करना शुरू किया। हर एक की खाल जगह जगह से झुलस गई थी। हमने एक हंस की खाल उतार कर उसकी चर्बी को बतौर खाल इस्तेमाल किया। ये चर्बी बड़ा अच्छा मरहम साबित हुई। झुलसी हुई जगह की जलन बिल्कुल जाती तो ना रही, अलबत्ता उसमें इतनी कमी ज़रूर वाक़या हो गई कि हम उसे बआसानी नज़रअंदाज कर सकते थे। इसके बाद डोंगे की मुरम्मत की, साजो सामान नए सिरे से बांधा और फिर दोपहर के खाने की तैयारियां करने लगे। हमारी बेहोशी शायद कई घंटों तक कायम रही थी, क्योंकि हमारे पेट खाली थे और हमारे भूख के आंतें ईंठी जा रही थी और हमारी घड़ियां बता रही थी कि दोपहर हो चुकी है। हम दायरा बनाकर बैठ गए और हिरन की रान पर पिल पड़े। ऐसा खाना खाने का शायद ही किसी का इत्तफाक हुआ हो। हम टटोल कर अपना हाथ गोश्त तक ले जाते, बड़ी मुश्किलों से लुकमा तोड़ते और फिर वो हाथ अंधेरे में मुंह की तरफ जाता और लुकमे को आहिस्ता से मुंह में छोड़ देता। एक लुकमा उठाने में हमें इतनी ही देर हो रही थी जितनी के आपको बावर्ची खाने में 4 लुकमे उठाने में होती होगी। यकलख्त एस्लोपोगास चीख उठा। हमें हैरान रह गए कि बात क्या हुई। एस्लोपोगास बेतहाशा गालियां बक रहा था और हम सवाल पर सवाल कर रहे थे कि क्या हुआ। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने पूरी बात समझाई। हुआ यूं कि इत्तफाकन अल्फोंसे का हाथ एस्लोपोगास के हाथ पर पड़ गया जो लुकमा तोड़ रहा था। अल्फोंसे के हाथ में एस्लोपोगास की उंगली आ गई। वह समझा कि किसी ने लुकमा बना कर रखा है, जो खुशकिस्मती से उसके हाथ आ गया। चुनाचे उसने एस्लोपोगास की उंगली दबोच कर उठाई। उधर एस्लोपोगास, जो इस जगह शैतानों के मस्कन का कायल था, हैरान था कि उसका हाथ कौन उठा रहा है। अल्फोंसे ने एस्लोपोगास की उंगली अपने मुंह में रखी और निहायत इत्मीनान से चबाने लगा। बड़ी मज़ेदार बात हुई थी ये, लेकिन हम इस खौफ से हंसी रोके हुए थे कि कहीं हंसी निकल गई तो फिर उसकी आवाज़ बाज़गश्त हमारे कानों के पर्दे फाड़ देगी। हमारा दोपहर का खाना जारी था कि मुझे अपनी पुश्त की तरफ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ पत्थर पर रेंग रही हो। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो कुछ नज़र न आया। मैं फिर खाने लगा। आवाज़ फिर आई और उस वक्त बहुत करीब से। इस बार फिर मैंने घूमकर देखा तो भौंच कर रह गया। एक चट्टान पर निहायत अजीमुल हब्सा केकड़ा बैठा, सुपारी जितनी आंखों से हमें घूर रहा था। हमारे तौर से हमारी दुनिया में बड़े से बड़ा केकड़ा पाया जाता है, उससे 5 गुना बड़ा था ये केकड़ा। उसके मुंह के दोनों तरफ 2 चमकदार सींग से थे और उसके पंजे पड़े बड़े देव के पंजों जैसे थे। अभी मैं उस केकड़े को देख रहा था कि गोल पत्थर के पीछे और चट्टान की दराजों में से ऐसे ही देव कामत कई केकड़े हमारे खाने की बू सूंघ कर निकल आए। उनमें से चंद तो हमारे बिल्कुल करीब आ गए
मैं इस अनोखे मंजर को निहायत दिलचस्पी से देख रहा था कि एक केकड़ा गुड के पीछे रेंग गया। गुड बेखबर बैठा लुकमे तोड़ रहा था कि उस घिनौने जानवर ने अपने पंजे फैलाकर गुड के कूलों को दबोच लिया। गुड उछला और बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकल गई और उसकी बाजगश्त देर तक हमें परेशान करती रही। उफ, मर गया, गुड ने कहा। क्या चुटकी ली है कमबख्त ने। उसी वक्त दो द्योकामत केकड़ों ने अल्फोंसे की टांग पकड़ी और उसे अल्फोंसे के जिस्म से तोड़ने के लिए जोर आजमाई करने लगे। दो केकड़े अल्फोंसे को घसीट रहे थे और अल्फोंसे की आंखें मारे खौफ के फटी जा रही थीं। उसका मुंह खुला हुआ था लेकिन उसमें से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। एस्लोपोगास ने जल्दी से अपना कुल्हाड़ा उठाया और अल्फोंसे की टांग से लिपटे हुए केकड़ों में से एक का खून कर दिया। केकड़ निहायत ही भयानक आवाज़ में चलाया और उसके मुंह से कफ जारी हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर अनगिनत दोस्त नादीदा सुराखों से निकल आए। जितने केकड़े अपने जख्मी साथी के करीब थे वो उस पर यूं पिल पड़े जैसे कर्ज खुआ किसी दिवालिये पर चश्म जदन में। केकड़ों ने जख्मी केकड़े की तिक्का बोटी उड़ा दी और जिसके हिस्से में जो भी उज्व आया उसे चट कर गया। पत्थर, बांस, चप्पू, जो भी हथियार हाथ में आए वो उठाकर हमने उन दो पैकर जानवरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उनकी तादाद बड़ी सूरत से बढ़ती जा रही थी और उनसे उठती हुई बदबू से हमारे दिमाग फटे जा रहे थे। जैसे ही हम किसी केकड़े को जख्मी करते कि फौरन दूसरे केकड़े उससे चिमट कर उसे हजम कर जाते। हम बड़ी फुर्ती से उन राक्षसों को जख्मी कर रहे थे कि उनकी तवज्जो हमारी तरफ से हटी रहे और अगर कहीं वो हमसे चिमट जाते तो हमारे भी टुकड़े उड़ा देते। एक काफ़ी बड़े केकड़े ने हंस पर कब्जा जमाया और उसे घसीटता हुआ एक तरफ चला। जब दूसरे ने देखा कि उसका एक साथी निहायत ही तरमाल उड़ाए लिए जा रहा है तो वो तेज़ी से उसकी तरफ लपका और इसके बाद एक निहायत ही घिनौना और ख़तरनाक मंजर शुरू हुआ। दोनों राक्षसों के मुंह में कफ भर आया। वो आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को लातें जमा रहे थे। वो चिल्ला रहे थे और अपने जिस्म के सींगों से एक दूसरे को खुसूट रहे थे। इस खाना जंगी से दूसरे केकड़ों ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने हंस का गोश्त तकसीम किया और निहायत इत्मीनान से तरमाल हजम कर गए। मैंने कहा, दोस्तों, इस मनहूस जगह से जितनी जल्दी मुमकिन हो भागो वरना हमारी खैर नहीं, गुड ने कहा। डोंगे के चारों तरफ लातादाद केकड़े रेंग रहे थे और कई एक उसकी दीवार पर चढ़ने में कोशां थे। हमने डोंगे को घसीटकर पानी में डाला। बड़ी अफरा तफरी में उसमें सवार हुए और उसे नदी के बीच में ले आए। साहिल पर हमारे बच्चे खुचे खाने पर दो पैकर केकड़े अब तक झगड़ रहे थे और उनकी चीखों की आवाज़ें खाड़ी में गूंज रही थीं। आखिरकार मैदान राक्षसों के हाथ रहा और हम इंसानों को फरार होते ही बनी। देखा, मैं ना कहता था कि यहाँ शैतान और भूत बसती हैं। ये भयानक केकड़े इस जगह रहने वाले भूत हैं। एस्लोपोगास ने इत्मीनान की सांस लेते हुए यूं कहा जैसे उसने वो मुअम्मा हल कर लिया हो जो उसे देर से परेशान कर रहा था। और सच पूछिए तो मैं भी एस्लोपोगास से मुत्तफिक था। अब क्या किया जाए, हेनरी ने पूछा। बहाव के साथ बहते चलो, और क्या, मैंने जवाब दिया। और हम ऊपर, बहुत ऊपर, आसमान की तरफ नजर आती हुई नीली धज्जी तले बहते रहे। हमें पता भी नहीं चला कि दिन कब ख़त्म हुआ और रात कब शुरू हुई। उस गहरी खाड़ी में दिन और रात में तमीज़ हो ही नहीं सकती थी। गुड ने आसमान की तरफ इशारा किया जहां तन्हा तारा आंखें झपक रहा था और अब हमें यकीन हुआ कि वाकई रात हो गई। हमें कोई काम करना ना था, इसलिए हम गर्दनें उठाए बड़ी दिलचस्पी से तारे ही को देखने लगे। और करते भी क्या, दफतन वो तारा गायब हो गया। अंधेरे की चादर दबीज हो गई और एक जानी बूझी सरसराहट की आवाज़ ने फिजा को पुर कर दिया। लो, फिर जेरे ज़मीन आ गई, मैंने लालटेन उठाकर मुंह बिसोरते हुए कहा, और इसमें कोई शक्को शुबे की गुंजाइश ना थी। हमारे सरों पर चट्टानी छत नजर आ रही थी। खाड़ी खत्म हो चुकी थी और सुरंग शुरू हो गई थी। और यूं एक और लर्जा बरामदम तवील रात का आगाज हुआ। आधी रात के करीब हमारा डोंगा किसी चट्टान से टकराया और करीब करीब उलट गया और हम डूबने से बाल बाल बचे। डोंगे को सीधा किया गया, लरजते कांपते उसमें सवार हुए और नाहमवार अनजान रास्ते पर चल पड़े, या यूं कहिए कि बहने लगे। सेकंड के बाद मिनट और मिनट के बाद घंटे गुजरते चले गए, यहाँ तक कि 3 बज गए। गुड, हेनरी और अल्फोंसे पड़े खराटे ले रहे थे। एस्लोपोगास बांस लिए डोंगे के अगले हिस्से पर बैठा था और मैं चप्पू लिए पिछले हिस्से पर। दफतन मुझे एहसास हुआ कि हम जिस रफ्तार से बह रहे थे उसमें इजाफा होता जा रहा था। डोंगे की रफ्तार तेज होती जा रही थी, तेज तेज और भी तेज। दूसरे ही लम्हे एस्लोपोगास के मुंह से हैरत के कलमात निकले और फिर टहनियों को हटाने और उनके टूटने की आवाज़ आई। हमारा डोंगा लटकती हुई झाड़ियों या बेलों के बीच से गुजर रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट और ताज़ा हवा का झोंका मेरे जिस्म में कभी पैदा करता हुआ गुजर गया।
और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हमारा डोंगा सुरंग से निकलकर खुले पानी पर तैर रहा हो। उस वक्त अंधेरा बहुत गहरा था और मैं कोई खातिर ख्वाह नतीजा अखज़ न कर सका। मेरी बाछें खिली जा रही थीं और दिल मारे खुशी के कलाबाजियां खा रहा था। हम उस मौत के गार से सही सलामत निकल आए थे। मैं खुश था, बेहद खुश, इतना कि मुझे खौफ हो चला कि कहीं मुझे शादी मर्ग ना हो जाए। बमुश्किल मैंने अपनी खुशी को दबाए रखा और सुबह का इंतज़ार करने लगा। आज से पहले मैंने कभी इतनी बेचैनी और शौक से सुबह का इंतज़ार न किया था। तकरीबन 1 घंटे तक मैं सुबह का इंतज़ार करता रहा। इस अरसा में एस्लोपोगास भी गहरी नींद सो गया था और मैं तन्हा बैठा हुआ अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उफक पर जर्दी छा गई, सत्याब से भूतों जैसी सफ़ेद जर्दी बसंती रंग में और फिर सुर्खी में तब्दील हो गई। उफ़ के मशरिक किसी नई दुल्हन के रुखसारों जैसा सुर्ख था। कुछ देर बाद रोशनी की सलाखें सी आसमान पर फैल गईं और साथ ही सुबह के पैगाम्बर ज़मीन की तरफ चले। उन्होंने इन जरात के दामन में शगाफ डाल दिए। चंद मिनट और मशरक़ी उफ़क़ के सुनहरी फाटक खुले और सूरज देवता अपने रिथ में सवार दिन भर के सफ़र के लिए चल पड़े और सुहानी सुबह मुस्कुरा उठी। लेकिन अब तक मैं ना मालूम कर सका कि हम कहाँ हैं। गाढ़े गाढ़े इंजरात रुई के गालों की तरह मेरे चारों तरफ मंडला रहे थे। रफ्ता रफ्ता सूरज की आतिशी किरणें अंजरात को निकलती चली गईं और मैंने देखा कि हमारा डोंगा गहरे नीले पानी पर तैर रहा था, लेकिन किनारा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। पीछे कोई 8-10 मील के फासले पर बुलंद और गैर मुतवाज़िन पहाड़ों का लामुतनाही सिलसिला चला गया था। ये पहाड़ उसी तालाब पर जिसमें हमारा डोंगा बह रहा था बंद की दीवार की तरह खड़े थे। इन्हीं पहाड़ों के दामन में कोई बड़ा सा सुराख होगा जिसके ज़रिए ज़ेरे ज़मीन दरिया और उसके साथ ही हम भी निकल आए थे। बाद में मालूम हुआ कि मेरा ये ख्याल बिल्कुल सही था, लेकिन अजीब बात यह मालूम हुई कि सुराख के करीब ही बहुत सी चट्टानें ज़ेरे आब थीं और पानी बड़ी तेज़ी से छोटे छोटे आबशार बनाकर बहता था। हैरत अंगेज़ अमर यह है कि हमारे डोंगे ने किस तरह से उन आबशारों को तय किया और हमें सही सलामत इस तालाब तक ले आया। इस मौमे का हल हमें आज तक न मिला। एस्लोपोगास ने, जो इस अरसे में बेदार हो चुका था, एक तरफ इशारा किया। कोई सफ़ेद चीज़ सतह आप पर बेहिस हरकत पड़ी हुई थी। डोंगे को देखते हुए हम उसके करीब जा पहुंचे। वो किसी शख्स की लाश थी जो मुंह के बल पड़ी हुई थी। हमें दहशत ज़दा करने के लिए यही काफ़ी था, लेकिन अब एस्लोपोगास ने चप्पू का ठोका देकर लाश को सीधा किया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। लाश के मस्क शुदा खदोखाल के बावजूद हमने उसे पहचान लिया। वो लाश हमारे उस वकाफ़ी मुलाजिम की थी जिसे 2 रोज़ पेशतर मौत के गार ने निगल लिया था। हमारा ख्याल था कि हम अपने वकाफ़ी मुलाजिम को कहीं पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन नहीं, उसका बेजान जिस्म इस ज़ेर ज़मीन सफ़र में हमारा साथी रहा। मैं कह चुका हूँ कि उसके खदोखाल बिगड़ चुके थे। चट्टानों से टकराकर उसके जिस्म के टुकड़े उड़ गए थे। आतिशी गुल से गुजरने के बावजूद उसका चेहरा झुलसकर तवे जैसा स्याह हो गया था और बाल जल गए थे। शायद उन दियो कामत केकड़ों ने भी इस शिकार को हासिल करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके रुखसारों और नाक पर उन राक्षसों के निशानात मौजूद थे। उसके मस्क शुदा चेहरे पर वो खौफ और मायूसी जो गर्क होते वक्त मैंने उसके चेहरे पर देखी थी, मुंजमद होकर रह गई थी। इस नज़ारे ने मुझे बिल्कुल ही बदहवास कर दिया और मुझे वो तमाम खतरात जिनसे हम गुजर कर आ रहे थे असर नौ याद आ गए। दफतन लाश यूं गर्क होने लगी जैसे उसकी टांग से रस्सी बांधे हुए आहिस्ता आहिस्ता कोई नीचे की तरफ खींच रहा हो। जब तक वो औंधी पड़ी हुई थी तब तक तो वो तैरती रही, लेकिन जब उसे सीधा किया गया तो उसकी हवा खारिज हो गई और फिर वो हल्की होकर गर्क होने लगी। वो बड़ी सुस्त रफ्तारी से शफाफ पानी की तहों की तरफ जा रही थी। काफ़ी गहराई तक वो हमें नजर आती रही, यहाँ तक कि वो धुंधली होती चली गई और फिर गायब हो गई। जिस राह से वो गई थी उस राह से चंद बुलबुले एक दूसरे का ताकुब करते हुए सतह आप पर नमूदार हुए और फिर फट गए। और ये हमारे आखिरी वो काफ़ी मुलाजिम का अंजाम था। कितना भयानक, कितना इबरतनाक। एस्लोपोगास किसी ख्याल में उलझा हुआ वो काफ़ी के जिस्म को गर्क होता देखता रहा। मैकोमेजन, उसने कहा, हमारे लिए ये कुछ अच्छा शगुन नहीं। और वो हंसा। मैंने निहायत गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझे उसकी ये दहला देने वाली बातें पसंद न थीं। मुझे उन लोगों से कल्बी नफरत है जो उल्टे सीधे अंदाजे कायम करके और ख्वाबों की फजूल ताबीर बताकर किसी को खौफजदा करते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं। उनका मशगला है कि दूसरों को दहशत ज़दा करके खुश हों, दूसरों की बदहवासी पर कह लगाएं, लेकिन जब वो खुद परेशान होते हैं तो दूसरों से तसल्ली और हमदर्दी के ख्वाहां होते हैं। खैर, ये तो एक एतराज़ का जुमला था। बहरहाल मेरे दूसरे साथी भी बेदार हुए और अपने आप को बजाय ज़मीन के बतन के
खुले तालाब की सतह पर पाकर मारे खुशी के पागल हो गए। खुशी की लहर रुखसत हुई तो गोया हमारी मजलिस शूरा का इजलास हुआ। ये मसला ज़ेरे गौर था कि अब क्या किया जाए और किस तरफ जाया जाए। हर शख्स अपनी ही हंक के जा रहा था और कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद होता नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार तय ये हुआ कि चूंकि इस वक्त भूख ज़ोरों की लग रही है, इसलिए पहले खाना खा लिया जाए। लेकिन हमारे पास 2-4 मछलियों के अलावा कुछ और था ही नहीं। जो कुछ लेकर चले थे उसे देवजाद केकड़े उड़ा ले गए थे। चुनाचे तय हुआ कि पहले इस तालाब का साहिल तलाश किया जाए। मुमकिन है वहाँ कोई शिकार मिल जाए और उसके बाद हम गार के अंदर से निकलने का जश्न मनाएं। लेकिन अब एक नया ख्याल दरपेश था। हम में से कोई नहीं जानता था कि साहिल है किधर। हमारे पुश्त की तरफ वो पहाड़ थे जिनमें से ज़ेरे ज़मीन नदी निकल आई थी और तीनों तरफ जहाँ तक नज़र काम करती थी पानी ही पानी नजर आता था। लेकिन मुट्ठी बराबर भी खुश्की का टुकड़ा ना था। अभी हम गौर ही कर रहे थे कि किस सिमत रुख करें कि आबी परिंदों की एक टोली दाएं तरफ से नमदार हुई और हमारे सरों पर से सनसनाती हुई गुजर गई। फिर दूसरी, तीसरी और उनका तांता बंध गया। परिंदों की आमद से हमने ये नतीजा अखज़ किया कि ये खुश्की के बसेरों से रवाना होकर तालाब पर अपनी खुराक हासिल करने आए हैं। चुनाचे हमने अपने डोंगे का रुख उसी सिमत कर दिया जिस तरफ से परिंदे आ रहे थे। खुशकिस्मती से हवा भी हमारी मुखालिफ नहीं थी। चुनाचे गुड्ड ने बांस पर एक कंबल बांधकर बादबान बनाया और हमारा डोंगा सुबक रफ्तारी से बहने लगा। इस काम से फुर्सत पाने के बाद हमने जो कुछ था वो खाया और पाइप सुलगाकर इस अंदाज में बैठ गए कि देखें पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है। 1 घंटे तक हमारा डोंगा बहता रहा। गुड दूरबीन लगाए उफ़क़ की तरफ देख रहा था। दफ़ातन वो मारे खुशी के चिल्ला उठा और उसने ये मज़दा सुनाया कि उसे किनारा नज़र आ रहा है। और फिर उसने पानी की बदली हुई रंगत की तरफ इशारा करते हुए इंकशाफ किया कि दरिया के धाने की तरफ बढ़ रही हैं। अभी हम इस मसले पर आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे कि अल्फोंसे ने हमारी तवज्जो एक तरफ मबजूल कराई। काफ़ी दूर पर अलिफ लैला के परिंदे रुख के अंडे जैसा सुनहरी गुंबद नज़र आ रहा था। हमें हैरान थे कि ये क्या बला है कि गुड ने, जो दोबारा दूरबीन लेकर खड़ा हो गया था, कहा कि वो इसी तरह के कई और गुंबद देख रहा है। कुछ देर बाद उसने हमें निहायत अहम खबर सुनाई और वो ये कि एक छोटी बादबानी कश्ती हमारी तरफ बढ़ ही चली आ रही है। इस खबर ने जिसकी तहकीक जल्द ही हो गई, चूँकि हमने भी उस कश्ती को देखा जो हमारी तरफ बढ़ ही चली आ रही है, हमें हैरान कर दिया और हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इस अनजान तालाब के किनारे बसे हुए लोग अगर बादबानी कश्ती बना सकते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ तहजीब याफ्ता होंगे। चंद ही मिनट बाद कश्ती में बैठने वालों ने हमें देख लिया। चंद सानियों तक कश्ती एक जगह जमकर रह गई और फिर तेज़ रफ्तारी से हमारी तरफ बढ़ी। 10 मिनट और गुजर गए और कश्ती हमसे सिर्फ 100 गज दूर थी और हमने हैरत से देखा कि वो डोंगा ना था जो दरख्त के तने को खोखला करके बनाया जाता है और अफ्रीका में आम है, बल्कि वो यूरोपियन तर्ज पर बनी हुई कश्ती थी जो तख्ते जोड़कर बनाई गई थी और एक बड़ा सा बादमान भी मौजूद था। लेकिन हमारी तवज्जो जल्द ही कश्ती से हटकर उनमें बैठने वालों की तरफ मबजूल हो गई। कश्ती में एक मर्द और एक औरत बैठी हुई थी और दोनों के दोनों सफ़ेद फाम थे, करीब करीब हमारे जैसे। हम आने वालों को और आने वाले हमको हैरानी से तक रहे थे और मैं सोच रहा था कि कहीं हमारी आंखें तो धोखा नहीं दे रही। लेकिन नहीं, किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। कश्ती में सवार औरत और मर्द की रंगत हकीकत में सफ़ेद थी, लेकिन इस कदर सफ़ेद भी नहीं कि फीकी फीकी मालूम हो। इटली वगैरह के बाशिंदे तो आपने देखे होंगे, बस ऐसा रंग था उनका। तो मैंने सफ़ेद फाम कौम के बारे में जो कुछ सुना था वो सच हुआ और ये भी एक अजीब इत्तफाक था कि हम खिलाफ तवक्को ज़ेरे ज़मीन नदी से सही सलामत निकल आए और कहाँ, उसी खित्ते में जिसकी हमें तलाश थी। सचमुच अगर इंसान किसी काम का पुख्ता इरादा करे तो खुदा उसकी मदद ज़रूर करता है। अपनी इस गैर मुतवक्का कामयाबी पर मैं खुशी से चिल्ला उठा होता, लेकिन मैंने खुशी के उमड़ते हुए तूफान को दबाए रखा और बड़ी गर्मजोशी से अपने साथियों से मुसाफिया किया और इस कामयाबी पर हमने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुद्दत से अफ्रीका के जंगलात में बसी हुई सफ़ेद फाम कौम के बारे में अफवाहें सुन रहा था। एक मुद्दत से मैं कोशिश कर रहा था कि सफ़ेद फाम कौम की खोज लगाऊं। आज मेरी वो देरीना ख्वाहिश पूरी हो रही थी। हम जिस मंजिल की तलाश में चले थे वो सामने नजर आ रही थी, लेकिन इस मंजिल पर पहुंचते ही मेरी ज़ुबान गुंग हो गई। बावजूद कोशिश के मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ तक न निकला। कश्ती में बैठा हुआ सफ़ेद फाम शख्स खासा सेहतमंद था। घोर काले बाल, चेहरे के नकूश कदरे तीखे, मुनासिब जिस्म जो भूरे लिबास में मलबूस था। अजीब लिबास था वो। ऊपरी जिस्म पर फिलालीन की कमीज सी थी, लेकिन बगैर आस्तीनों की। नाफ से नीचे इस किस्म के कपड़े का तहमंद बंधा हुआ था।
जो पिंडलियों तक आता था और पैर नंगे थे। वो दाएं हाथ में कोहनी से ऊपर और बाएं पैर की पिंडली पर पीली धात के कड़े पहने हुए था। ये पीली धात सोना मालूम होती थी। औरत बेहद कबूल सूरत, शर्मीली और वैशी हिरनी जैसी चंचल थी। बड़ी बड़ी बादाम की सी आंखें और सर पर भूरे रंग के रेशमी घुंघराले बाल। उसका लिबास भी उसी रंग और उसी कपड़े का था जैसा कि मर्द का था, और जैसा कि हमें बाद में मालूम हुआ, एक तो पेटीकोट था जो घुटनों तक आता था, फिर कपड़े की एक 4 फुट चौड़ी और 15 फुट लंबी पट्टी थी, सारी ऐसी जो कि उसकी कमर के गिर्द लिपटी हुई थी, और उसका एक सिरा दाएं कंधे के पीछे लटक रहा था। ये पट्टी या उसकी कवर हरी सुर्ख या फिर पहनने वाले की खानदानी हैसियत के मुताबिक किसी और रंग की होती थी। दायां बाजू और एक छाती बिल्कुल उरियां थी। बेहद खूबसूरत और मुनासिब लिबास था, और उसे पहनने वाली जब जवान और खूबसूरत हो तो उस लिबास से उसका हुस्न दोबाला हो जाता। गुड, जो हुस्न परस्त वाक़या हुआ था, इस मामले में निहायत बारीक बीन था। लिबास और लिबास वाली के हुस्न से मबहूत हो गया। मेरा अपना भी यही हाल था। लिबास सादा होते हुए भी दिलकश था। उन दोनों को देखकर जितने हैरान हम हुए, उससे दुगने हमें देखकर वो दोनों हैरान हुए। मर्द मालूम होता था हमें देखकर सरासीमा और खौफजदा हो गया था। चुनाचे वो कुछ देर तक हमारे डोंगे से दूर ही दूर रहा। शायद हमारे करीब आने की उसमें हिम्मत न थी। आखिरकार कुछ सोचकर उसने अपनी कश्ती को हमारी तरफ बढ़ाया, और इतने करीब आकर के हम बआसानी आपस में गुफ्तगू कर सकें, उसने अपनी कश्ती रोक ली। कुछ देर तक वो हम में से हर एक को सर से पैर तक बगौर देखता रहा। फिर निहायत शीरीं लोचदार आवाज़ में हमसे कुछ कहा, लेकिन उस ज़ुबान का एक लफ्ज़ भी हम समझ ना सके। अब हमने अपनी ज़ुबानें आजमाना शुरू की, और अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, डच, ज़ुलू, गर्ज जितनी ज़ुबानों में मुझे थोड़ी बहुत दस्तरस हासिल थी, वो तमाम की तमाम आजमा डाली। लेकिन बजाय इसके कि वो हमारी बात समझ सकता, इतनी बहुत सी और निराली बोलियां सुनकर वहशत ज़दा हो गया। अब रही उसकी साथी औरत, तो वो बड़ी दिलचस्पी से हमें देख रही थी, और गुड उसकी दिलचस्पी की दाद अपनी यक चश्मी ऐनक के पीछे से घूर कर यूं दे रहा था जैसे कि उसे चबा जाएगा। गुड की इस नज़रबाजी से मालूम होता था औरत भी लुत्फ़ ले रही थी, क्योंकि बार बार उसके नाजुक होंठों पर मुस्कुराहट नाच जाती थी। बहरहाल हमारी अजीबोगरीब बोलियों से घबरा कर मर्द ने अपनी कश्ती को किनारे की तरफ मोड़ा, और वह हल्की फुल्की कश्ती अबाबील किसी सुबक रफ्तारी से चली। उसकी कश्ती जब हमारे डोंगे के अगले हिस्से के करीब से गुजरी तो मर्द हमारे अजीबोगरीब बादबान के मुआयने के लिए रुक गया। गुड औरत के हुस्न को देखकर बड़ी देर से बेकाबू हो रहा था। उसने ये मौका गनीमत जाना। वो झुका और औरत का हाथ पकड़कर अपने होंठ उस पर रख दिए। मैं घबराया कि कहीं औरत गुड की इस हरकत से खफा होकर चिल्ला न उठे, लेकिन उसने कुछ ना कहा, बल्कि ये देखकर कि उसके शौहर या भाई या जो कोई भी वो था, उसकी तवज्जो हमारे बादबान की तरफ है, उसने भी गुड का हाथ चूम लिया। गुड फरते इम्बसाद से झूम उठा और उसके होंठों पर कामयाब मुस्कुराहट झूम गई। लो भाई, मैंने तन से कहा, इन लोगों से गुफ्तगू करने का एक जरिया तो मालूम हो गया। इस सूरत में हेनरी ने कहा, गुड बड़ा काबिल मुतरज्जम साबित हो सकता है। मैंने बुरा समूह बनाया। गुड की ये बेहुदा हरकतें मुझे पसंद न थीं, और गुड मेरे गुस्से से वाकिफ था। चुनाचे उसने बड़ी महारत से बातों का रुख एक निहायत अहम मसले की तरफ कर दिया। जाहिर है, मैंने कहा, कि वो शख्स जो अभी अभी यहाँ से गया है जल्द ही अपने साथ चंद लोगों को लेकर आएगा। लिहाजा अब सवाल यह है कि हम उनका इस्तकबाल किस तरह से करेंगे। उनका इस्तकबाल? भाई, मेरा सवाल तो ये है कि वो लोग हमारा इस्तकबाल किस तरह से करेंगे, हेनरी ने कहा। अब रहा गुड, तो उसे इन सवालों से कोई दिलचस्पी न थी। वो बैठा हमारा सामान उलट पलट रहा था। उसे किसी चीज़ की तलाश थी। काफ़ी खड़बड़ करने के बाद उसने एक छोटा सा संदूक बरामद किया। ये संदूक हर सफ़र में हमें अपने साथ उठाए उठाए फिरना एक मुसीबत थी, लेकिन गुड बज़िद था कि वो जहाँ जाएगा ये संदूक उसके साथ जाएगा। ये संदूक हमारे लिए मुअम्मा बना हुआ था, और हमें हैरान थे कि इसमें ऐसी क्या सौगात बंद है कि गुड इसे कभी अपने से अलग करता ही नहीं है। कई बार गुड से पूछा तो वो टाल गया। जब हम उसके बहुत पीछे पड़ जाते तो वो सिर्फ इतना कहता कि इस संदूक में जो कुछ बंद है वो किसी दिन बड़ी कारआमद चीज़ साबित होगी। अब ये तुम क्या फजूल चीज़ें तलाश कर रही हो, हेनरी ने पूछा। हैं, फजूल चीज़ें? मैं अपना लिबास तब्दील करूँगा, और क्या। जाहिर है कि किसी नए मुल्क में पहली बार मैं इन चीथड़े कपड़ों में दाखिल नहीं हो सकता। गुड ने अपने फटे हुए कपड़ों की तरफ इशारा किया जो धूल में अटे हुए थे। हम खामोश बैठे हुए गुड की हरकतों को देखते रहे। उसने अल्फोंसे को हुक्म दिया कि वो उसके बालों और दाढ़ी में कंघी कर दे, अप टू डेट, बिल्कुल नए फैशन के मुताबिक, समझे, उसने कहा। और अल्फोंसे एक माहिर शातिर की तरह
गुड के बाल बाल में मोती पिरोने की कोशिश करने लगा। अगर कहीं से गर्म पानी और साबुन की एक टिकिया मिल जाती तो गुड जरूर अपनी दाढ़ी पर उस्तरा फेर देता, लेकिन अफसोस कि ये चीज़ें मुहैया न थीं। गुड कंघी वगैरह से फुर्सत पा चुका तो उसने हमें मशवरा दिया कि डोंगे के बादबान को नीचे की तरफ खिसकाकर हम सब उसकी ओट में गुसल कर लें ताकि जिस्म की रंगत भी खिल जाए और चाको चौबंद भी हो जाएं। गुड का मशवरा वाकई मुनासिब था, चुनाचे हमने इसे कबूल किया और अल्फोंसे ने हाथ फैलाकर निहायत हैरानी से कहा, वाकई अंग्रेज़ नीम पागल होते हैं। एस्लोपोगास चूँकि आम जूलों की तरह कुदरती साफ था, इसलिए वो हमारे साथ नहाने में शरीक ना हुआ, बल्कि डोंगे में बैठा कदरे हैरानी से हमारी हरकतें, जो उसके ख्याल में बच्चों की सी हरकतें थी, देखता रहा। नहा चुकने के बाद हम अपने आप को बेहद हशाश बशाश महसूस कर रहे थे। मालूम होता था हमारी तमाम थकन तालाब के पानी में हल हो गई। हम अपने जिस्म में नई ताकत और ताजगी महसूस कर रहे थे। अब गुड ने अपना वो पुरस्कार संदूक खोला और एक सफ़ेद बुर्राक कमीज़ बरामद की, जो यूँ मालूम होती थी जैसे अभी अभी किसी लॉन्ड्री से लाई गई हो। और फिर उसने छोटा सा बुकचा बरामद किया जिसमें भूरे रंग का कागज़ लिपटा हुआ था। भूरा कागज़ अलहदा किया तो सफ़ेद, और उसे अलहदा किया तो सुनहरा कागज़ नमूदार हुआ। हम हैरानी से देख रहे थे कि आखिर इन 7 परतों में कौन सी अनोखी चीज़ बरामद होती है। गुड जैसे मदारी का तमाशा कर रहा था और हम बच्चों की तरह दम बखुद किसी शोबदे के मुंतज़िर थे। आखिरी कागज़ भी अलहदा किया गया। गुड ने हाथ बुकचे में डाला जैसे वो थैले में से खरगोश निकालने वाला हो। फिर गुड ने मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा। हम तैयार हो बैठे कि अब कोई माफूकुल फितरत चीज़ बरामद होने वाली है। गुड ने अपना हाथ बाहर निकाला और हमारी आंखों में चकाचौंध पैदा हो गई। गुड के हाथ में कोई माफूकुल फितरत चीज़ न थी, बल्कि निहायत ही सफ़ेद वर्दी थी। रॉयल नेवी की वर्दी, आला कपड़ा, उम्दा बोताम, नफीस सफ़ेद डोरें और काबिल रश्क सलाई, साथ ही एक छोटी सी तलवार, उसकी मखमली नियाम और चमकदार जूतों का एक जोड़ा। हम दम बखुद रह गए। हैं? मैंने और हेनरी ने यक ज़ुबान होकर कहा, यानी अब तुम ये वर्दी पहनोगे? कतई, गुड ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। बात यह है कि ज़रा ये लोग मरूब हो जाएंगे, और एक ख़ास बात यह है, उसने इजाफा किया, इस देश में जबकि औरतें भी मौजूद हैं तो हम में से किसी एक को नहायत आला लिबास में मलबूस होना चाहिए, इससे अच्छा असर पड़ता है। हम खामोश हो गए। ओफो, हमने उस संदूक के बारे में क्या कुछ ख्याल आराइयाँ नहीं की थीं, लेकिन मामला कुछ यूँ हुआ कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। बहरहाल हमने गुड को एक मशवरा ज़रूर दिया, और वो ये कि अपने इस फूकुल भड़क लिबास के नीचे लोहे की कमीज ज़रूर पहन ले, क्योंकि मुमकिन है कि आने वाले लोग हथियारों से हमारा इस्तकबाल करें। गुड का कहना था कि ज़रा उसकी वर्दी की क्रीज बिगाड़ देगी। काफ़ी बहस व मुबाहसा के बाद गुड ने ज़रा पहनना मंजूर कर लिया और उस पर वर्दी पहन ली। लेकिन डराने का सबसे मज़ेदार हिस्सा वो था जबकि एस्लोपोगास ने हैरत और अल्फोंसे ने मुसरत से गुड के इस तगय्युर की दाद दी। गुड अपनी कप्तानी शान व शौकत के साथ अपने सीने पर ढेरों तमगे आवेज़ां किए हमारे सामने खड़ा था। एस्लोपोगास की हैरत और अल्फोंसे के मुसरत से मुतमईन ना होते हुए झुककर तालाब के शफाफ पानी में अपना अक्स देखा और खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। बूढ़ा जुलू सरदार देर तक सब्र न कर सका। अबागोन, उसने कहा, आप सचमुच हरे रंग के जइये जैसे मालूम होती हैं, एक यूरोपियन परिंदा जो शोर मचाने के लिए मशहूर है। मैंने तो आपको निहायत ही बेढंगा आदमी समझ रखा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आप बड़े जामा जेब हैं और आपकी वर्दी देख देख कर मेरी आंखें चुंधिया रही हैं। मैंने तो आपको बस के एक मोटा शख्स समझ रखा था बस। गुड को अपने मोटापे का जिक्र कुछ ज़्यादा पसंद न आया, और सच तो यह है कि अब वो पहले जितना मोटा नहीं रहा था। उसके जिस्म की चर्बी की काफ़ी मिकदार पसीना होकर बह गई थी। ओह क्या शान, खुदा कसम, अल्फोंसे ने कहा। एक सिपाही किसी आन बान और रोब, भाई वाह वाह। जब हम किनारे पर पहुंचेंगे तो इस मुल्क की औरतें, जवान क्या बूढ़ी भी दिल महसूस कर रह जाएंगी। उम्दा, बहुत ही उम्दा। और यहाँ हमने अल्फोंसे को सख्ती से रोक दिया। अल्फोंसे और एस्लोपोगास की तारीफ सुनकर हमारे दिल में भी गुदगुदी हुई। चुनाचे हम भी लिबास तब्दील करने में मशगूल हो गए। हमारे पास सिवाय शिकारी सूट के और कोई लिबास था ही नहीं। चुनाचे हमने उसे ही चढ़ा लिया कि कुछ ना कुछ तो इंसान मालूम होंगे। साफ गोई से काम लेते हुए मैं अपने बारे में कहता हूँ कि दुनिया का हसीन तरीन लिबास मेरे जिस्म पर आकर भद्दा मालूम होने लगता है। अब रहा हेनरी तो वो काफ़ी वजीह मालूम हो रहा था। शायद ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमने लिबास तले ज़रहें पहन रखी थी। अल्फोंसे ने भी अपने नादिर ज़माना मूंछों की नोकों को कई एक मरोड़ियाँ दी और तैयार हो बैठा। एस्लोपोगास
जो ज़ेबो ज़ीनत का कायल ना था, उस वक्त जोश में आ गया और लालटेन से थोड़ा सा तेल उंडेल कर अपनी चुंदिया पर उस वक्त तक मलता रहा जब तक कि वह गुड के नए जूतों की तरह चमकने ना लगी। फिर उसने हेनरी के नायत करदा ज़िरहा ज़ेबेतन की अनकोसी कास को चिथड़े से मल मल कर साफ किया और अब वो भी तैयार था। हमारी इन तैयारियों के दरमियान हमारा बादबानी डोंगा किनारे की तरफ, या फिर यूं कहिए कि दरिया की तरफ बढ़ता रहा। उस छोटी सी कश्ती को, जिसमें एक मर्द और औरत सवार थे, हमसे रुखसत हुए कोई 1.5 घंटा हुआ था कि हमने देखा कि लातादाद छोटी बड़ी कश्तियां किनारे की तरफ से चली आ रही हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी कश्ती को बैक वक्त 22 पतवारों के सहारे आगे की तरफ धकेला जा रहा था। उस एक कश्ती को छोड़कर वो सारी तमाम कश्तियां बादबानी थीं। दूरबीन से देखने पर पता चला कि पतवारों वाली कश्ती सरकारी थी, क्योंकि उसमें जितने भी लोग थे तमाम के तमाम एक ही किस्म और एक ही रंग का लिबास पहने हुए थे। कश्ती की अगली नोक पर एक शख्स खड़ा हुआ था, जिसकी बर्फ़ जैसी सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उसका लिबास मजहबी रहनुमा जैसा था और कमर से तलवार लटक रही थी। ये शख्स इस कश्ती का अफसर या आका मालूम होता था। दूसरी कश्तियों वाले महज शौक और तजस्सुस की खातिर अपने घरों से निकल आए थे। उन कश्तियों में गोया के दौड़ लगी हुई थी और हर शख्स चाहता था कि वही सबसे पहले अपनी कश्ती को हम तक पहुंचा दे। क्या ख्याल है तुम लोगों का? मैंने हेनरी और गुड से कहा। ये लोग हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे या फिर हमारा काम ख़त्म करने आ रही हैं? इस सवाल का कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिल सका। पतवारों वाली कश्ती में सबसे आगे खड़े हुए मुकद्दस बूढ़े के चेहरे से सुकून और सुलह पसंदी की जज्बात हवीदा थे और उसकी कमर से लटकती हुई तलवार भी ऐसी न थी जो जंग में काम आ सके। हम उम्मीदों बीम के हालात में आने वालों के मुंतज़िर थे। ऐसे मौका पर गुड ज़रूर कोई उल्टी सीधी तजवीज़ पेश करता है। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हमसे कोई 100 गज दूर दरियाई घोड़े आपस में चहलें कर रहे थे। गुड ने कहा कि अगर हम इन दरियाई घोड़ों में से 2 एक को अपनी बंदूक का निशाना बना लें तो आने वालों पर हमारा रोब छा जाएगा और वो हमारी बेपनाह कुव्वतों से खौफजदा हो जाएंगे, और अगर हमारी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कत्ल करने की भी हिम्मत ना करेंगे। ये हमारी बदकिस्मती थी कि हमें गुड की तजवीज़ बेहद मुनासिब मालूम हुई। चुनाचे हमने 8 बोर की राइफल, जिसके कुछ कारतूस हमारे पास महफूज थे, निकाली और गुड की तजवीज़ पर अमल पैरा होने के लिए तैयार हो गए। दरियाई घोड़े तादाद में 4 थे, एक नर एक मादा और 2 बच्चे, जिनमें से एक बालिग हो चुका था। हमने अपना डोंगा उनकी तरफ बढ़ाया और बगैर किसी मुश्किल के उनकी तरफ पहुंच गए। उन्होंने हमारी तरफ देखा, लेकिन बजाय इसके कि वो हमें देखकर खौफजदा होते और ज़्यादा चहलें करने लगे, उनकी इंसानों से ये उनसियत मुझे कुछ गैर मामूली और हैरान कुन ज़रूर मालूम हुई, लेकिन अफसोस कि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। किनारे की तरफ से आती हुई कश्तियाँ हमसे 500 गज के फासले पर थीं कि हेनरी ने अपनी बंदूक की लुबलुबी दबा दी। गोली सनसनाती हुई चली और बालिग भी घोड़े की पेशानी तोड़ती हुई गुजर गई। घोड़ा बेजान होकर पानी की सतह पर लंबा लंबा लेट गया और फिर खून की एक लकीर छोड़ता हुआ गर्क हो गया। उसी वक्त मैंने मादा को और गुड ने नर को निशाना बनाया। मेरा निशाना कुछ ओछा पड़ा। मादा फुंकारती हुई गोता मार गई और फिर उभरी तो लाल लाल आंखों से हमें देख रही थी। उसने अपना गार जैसा मुंह फाड़ा और इस बुरी तरह से धाड़ी के अल्फोंस से अपनी जगह पर 1 फुट के करीब उछल पड़ा। मैंने दूसरी गोली चलाई और ये गोली घोड़ी के हक में पैगाम मौत साबित हुई। गुड माहिर निशानेबाज ना था, चुनाचे गुड का निशाना खता गया। गोली नर के चेहरे पर हल्की सी खराश बनाती हुई गुजर गई। जब मैं मादा का काम तमाम कर चुका तो मैंने गर्दन घुमाकर आने वालों की तरफ देखा और ये जानकर मुझे एक गोना इत्मीनान हुआ कि आने वाले बंदूक और उसके इस्तेमाल से कतई नावाकिफ थे। हमारी बंदूक की गरज और उसकी तबाही देखकर वो लोग दहशतज़दा हो गए। चंद लोगों ने बुरी तरह चिल्लाना शुरू किया और चंद अपनी कश्तियाँ फेर कर तेज़ी से किनारे की तरफ भाग गए। हत्ता कि वह मुकद्दस बूढ़ा भी, जो पतवारों वाली कश्ती में सबसे आगे खड़ा हुआ था, हैरान और परेशान नजर आ रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और पतवारों वाली कश्ती थम गई। अभी हम आने वालों पर अपनी बंदूक का असर देख ही रहे थे कि जख्मी घोड़ा हमसे कोई 40 गज दूर नमूदार होकर बादल की तरह गरजने लगा। वो बेहद झल्लाया हुआ था और वहशतनाक नज़रों से चारों तरफ देख रहा था। मैंने, गुड ने और हेनरी ने बैक वक्त उस पर गोलियां चलाईं। घोड़ा बुरी तरह से जख्मी होकर फिर गोता मार गया। तमाशबीनों का खौफ हैरत और तहसीन में तब्दील हो रहा था। उनमें से कई एक कश्तियां हमारे डोंगे के करीब आ गई थीं और उन करीब आने वालों में वो मर्द औरत भी शामिल थे जो हमें सबसे पहले मिले थे और एक आध घंटा पहले हमसे रुखसत हुए थे। ये कश्ती हमारे डोंगे के बहुत करीब थी। जख्मी घोड़ा हमारे पहले मुलाकाती की कश्ती से सिर्फ 10 गज दूर निकला
और अपना मुंह फाड़कर उनकी तरफ लपका। औरत बेतहाशा चिल्लाने लगी और मर्द ने अपनी कश्ती को एक तरफ हटाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कश्ती को हटा सकता, घोड़ा उनके करीब पहुंच गया और उसने कश्ती के अगले हिस्से पर मुंह मारा और दूसरे ही लम्हे कश्ती का अगला हिस्सा भयानक घोड़े के मुंह में दबा हुआ था। तख्तों को मुंह में दबाए वो फिर गोता मार गया। निस्फ कश्ती जो बची हुई थी, कश्ती बानों को सतह पर हाथ पांव मारते छोड़कर चक्कर काटती हुई गर्क हो गई, और इससे पहले कि हम उस मर्द और औरत को बचाने की कोशिश करते, वो भयानक जानवर फिर उभरा और मुंह फाड़कर औरत की तरफ लपका। मैंने जल्दी से अपनी राइफल उठाई। वो औरत के करीब पहुंच चुका था। उसने धाड़कर औरत पर हमला किया और मैंने बड़ी अफरा तफरी में बंदूक दाग दी। गोली उसके हलक में पेवस्त हो गई। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। वो चिल्लाने लगा और गोल गोल घूमने लगा। मैंने एक और फायर किया और वो मुर्दा होकर लामहदूद तहों की तरफ चला। हम औरत की तरफ बढ़े जो बड़ी दिलेरी से हाथ पैर मार रही थी। मर्द तैरता हुआ एक और कश्ती के करीब पहुंचकर उसमें जा चढ़ा था, और जब हमने औरत को अपने डोंगे पर खींचा तो तमाशबीनों ने बेखुद होकर तहसीन आफरी के नारे बुलंद किए। औरत सिर्फ दहशत ज़दा थी। उसके जिस्म पर मामूली सी खराश तक नहीं आई थी। इस अरसा में तमाम कश्तियाँ हमसे कुछ दूर एक जगह जमा हो गई थीं और कश्ती बान आपस में मशवरा कर रहे थे। ये बात तो साफ थी कि वो हमसे बेहद खाइफ थे, इस ख्याल से कि अगर उन लोगों को मशवरा करने का मौका दिया गया तो शायद हमारे हक में बेहतर साबित ना हो। आगे बढ़कर गुड अपनी शान शौकत के साथ डोंगे के अगले हिस्से पर खड़ा हो गया। उसने अपना हैट मुंह में ले रखा था और मुस्कुरा कर दाएं बाएं खड़ी हुई कश्तियों के सवारों को निहायत शाइस्तगी से सलाम कर रहा था। पतवारों वाली कश्ती हमारे इस्तकबाल को आगे बढ़ी।